Good morning, my dear students. So, today we are moving forward with the topic chemicals from common salt. Up to this, we have read in our previous class that how the salt are formed. Seawater contains many types of salts dissolved in it. From it, sodium chloride is also obtained, and there is a rock salt also. We have studied this in detail in our previous class. If you want to study it in detail, just go to the previous video and watch it. Fine. Today we are starting with the topic common salt, a raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use. As we have studied that common salt NaCl is prepared by which reaction the common salt is obtained? Can anybody remember by which reaction it is obtained? It can be obtained by neutralization reaction. The neutralization reaction is HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. Fine. It is a neutral salt. ये कैसा सॉल्ट है हमारा? न्यूट्रल, as it is nor acidic nor basic. Fine. What are its uses? It is used in daily our kitchen. हमारी जो किचन में सॉल्ट यूज़ होता है वो क्या है? कॉमन सॉल्ट. फॉर्मूला इज NaCl. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Now let us discuss how one substance is used for making all these different substances. In this topic we are going to discuss that how NaCl is useful in the preparation of sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. So just start the topic. First is sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride that is NaCl और water, जब हम दोनों को mix करते हैं then the aqueous solution is called brine. What it is called? Brine. Means जो नमक का पानी है हमारा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, जो हमारा नमक का पानी है तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्राइन. इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसी नमक के पानी का, सॉल्टी वाटर का अगर हम डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. अंडरलाइन दिस एंड लर्न. क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इट इज कॉल्ड because of the products formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. यहाँ देखो, जब ये रिएक्शन हो रही है NaCl और वाटर की, जो हमारा ब्राइन है, what we are getting? We are getting sodium hydroxide and chlorine. Chlorine gas is releasing and sodium hydroxide. That's why it is called chlor alkali process. Chlor for chlorine and alkali for NaOH. In this activity, in this process, what we have to do? In this, chlorine gas is given off at the anode. Chlorine gas कहाँ पे हमें रिलीज हो जाएगी? एनोड पर. और हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होगी? कैथोड पर. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. There are different uses also given here. Chlorine, it is mostly used in disinfectant purposes. जो भी हमारे cleaning के purposes हैं, water treatments हैं, उनमें हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? Chlorine, because it is a disinfectant. Chlorine gas is used in water treatment of swimming pools, PVC, disinfectants, CFCs and pesticides. Whereas on the other hand, hydrogen gas is used as fuels, margarine, ammonia for fertilizers.
and sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used for degreasing metals, soaps and detergents, paper making and artificial fibers. In this way, all the things that we are obtaining, हमें जो भी प्रोडक्ट्स इस प्रोसेस से, क्लोर-अल्कली प्रोसेस जो है हमारे, इससे जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो सभी क्या हैं, यूज़फुल हैं, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है. ओनली वी हैव टेकन NaCl, मेक द aqueous solution that is called brine and decomposing it. Fine. I think the chlor-alkali process is clear to you. Move to the next topic, that is bleaching powder. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. अभी हमने देखा कि जब हम ब्राइन क्या है हमारा, अभी पढ़ा हमने, aqueous sodium chloride का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, then which gas is released? Chlorine gas is released. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. अब ये जो क्लोरीन गैस हमारे रिलीज़ हुई है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. सी हियर, जो हमारी क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई कौन सी प्रोसेस में, क्लोर-अल्कली प्रोसेस, जो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ी है, उसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अदर नेम क्या है, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ जब हमने करवाया तो हमें क्या मिला, CaOCl2, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो हमें केवल क्या याद रखना है कि जब क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, द फॉर्मूला इज CaOCl2. क्लियर. व्हाट आर इट्स यूजेस, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज़, पेपर फैक्ट्रीज़ में ब्लीचिंग करने के लिए. एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, जो लॉन्ड्री है जहाँ पे हम अपने क्लॉथ्स वॉश करवाते हैं वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है. देन सेकेंड पॉइंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं. व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैव यू रिमेंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट इट. यस और नो, हैव यू रिमेंबर इट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनका रिडक्शन होता है, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड द थर्ड यूज is to make drinking water free from germs. As you all know that chlorine is used as a disinfectant and bleaching powder has also an amount of chlorine in it. That's why it is used to make drinking water free from germs. The next is baking soda. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty, crispy pakoras, etc. Sometimes it is added for faster cooking. जब भी हमारे घरों में कुछ भी हमें प्लफ़ी बनाना होता है, क्रिस्पी बनाना होता है, what we add in it? We add baking soda. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. What its chemical name? Chemical name is sodium hydrogen carbonate and formula is NaHCO3. What is the formula? The formula is NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. The reaction is NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 and it will give ammonium chloride and our baking soda. It is mostly used in our kitchen. Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेसिकली क्या होता है, एक
बेस होता है. व्हाट इज इट इज़ अ बेस. तो जो एसिड है उसके इफेक्ट को ये क्या कर देगा, कम कर देगा. इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. तो जब भी हम इसे कुकिंग के टाइम पे, कुकिंग के लिए हमने जो भी हमारा बैटर है, डो है, उसमें इसको ऐड किया है, तो जब हम कुकिंग करेंगे तो ये हीटअप होगा और हीटअप होके इसका क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन होगा और डीकम्पोजिशन से हमारा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है. फाइन. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट. नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. जब भी हम बेकिंग सोडा को या बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे या वाटर के साथ मिक्स करेंगे, दैन दिस रिएक्शन विल हैपन. ठीक है. NaHCO3 हमने लिया है, उसमें हमने क्या किया है, कोई सा भी एक माइल्ड एसिड ऐड किया. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, tartaric acid or anything else. Which gas is released? CO2, carbon dioxide, water and sodium salt of acid. That's why it is used in making cakes or etc. pastries like. Carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, जो हमारी ब्रेड है या केक है वो कैसा बनेगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. अल्कलाइन होने के कारण ये क्या करेगा, जो भी हमारे बॉडी के अंदर एसिड का इफ़ेक्ट हुआ है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगा और हमें स्टमक पेन से रिलीफ मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. वाई इट कैन बी यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. हम इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ क्यों कर सकते हैं. कैन एनीबडी गिव मी द आंसर. The reason is it is releasing carbon dioxide. क्या रिलीज़ कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है और इसके कारण जो हमारी फायर है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो हमारी फायर है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. क्लियर. नाउ कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन यू मेक बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा. कई बार क्वेश्चन आता है, मुझे जो ध्यान आ रहा है कि एक बेकर है, उसको तुमने बेकिंग सोडा प्रोवाइड करवा दिया, बट ही वांट्स बेकिंग पाउडर. उसको चाहिए क्या था, बेकिंग पाउडर. नाउ हाउ कैन यू हेल्प हिम. तुम उसकी हेल्प कैसे करोगे. उसको चाहिए क्या था, बेकिंग पाउडर. तुमने उसको क्या दे दिया, बेकिंग सोडा. हाउ कैन यू हेल्प हिम नाउ. यू कैन हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग हिम एनी अदर माइल्ड एसिड. तुम उसे कोई सा भी अगर दूसरा एसिड दे दोगे, सच एज एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एनीथिंग एल्स. ठीक है. तो वो उसको बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर लेगा और बेकिंग पाउडर हमारा रेडी हो जाएगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड is Na2CO3.10H2O, that is washing soda. You have been seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा. और जब हम उसको रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, दैन व्हाट विल वी ऑब्टेन वॉशिंग सोडा एंड इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट. Now, what are its uses? The uses of washing soda. First, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. In which it is used? It is used in glass, soap and paper industries. Second, it is used in the manufacturing of borax.
बोरैक्स के मैन्युफैक्चर में भी हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज. जो हम घरों में सफाई के लिए काम में लेते हैं वो भी क्या है, वॉशिंग सोडा. देन फोर्थ, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हम इससे रिमूव कर सकते हैं. फाइन. सो व्हाट यू हैव टू लर्न, you have to learn all the chemical names, their uses and how they can be obtained. You have to learn all these topics related to the salt formation. Clear? Now the next topic is, are the crystals of salts really dry? For this you have to do this activity. We are taking copper sulfate crystals and then heating it. The color of the copper sulfate crystals on heating will change. जैसे ही हम गर्म करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. Why? Because on heating the moisture contained will be released. जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें प्योर फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे. इफ़ द कॉपर क्रिस्टल्स आर मॉइस्ट, अगर वो हल्की से भी उनमें मॉइस्चर है, देन द कलर इज ब्लू. व्हाट इज इट्स कलर, ब्लू. एंड व्हेन इट इज ड्राइड, जब उसका पूरा मॉइस्चर रिमूव हो गया है, व्हाट इज इट्स कलर, इट्स कलर विल बी वाइट. रिमेंबर दीज कलर्स ऑल्सो कि अगर मॉइस्चर है तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर होगा ब्लू, और अगर मॉइस्चर रिमूव हो गया है तब कौन सा कलर होगा, वाइट. ठीक है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट. कि किसी भी सॉल्ट के वन फार्मूला यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो उसका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. The chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. Fine. One other salt which possess water of crystallization is gypsum. और किस में होता है water of crystallization, gypsum. It has two water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4.2H2O. 2H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कि जब हम इसको हीटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate. तब ये क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. एंड इट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो फ्रैक्चर होने पर यूज़ किया जाता है. कॉमन नेम, chemical name and chemical formula you have to learn for this. How is it obtained? On heating. The substance with plaster of Paris is used by the doctors as a plaster for supporting fractured bones in the right position. You all know about it कि जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो जो सॉल्यूशन तुम्हारे लगाया जाता है वो कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. द फॉर्मूला इज CaSO4.5H2O plus 1.5 H2O. It will give gypsum again and it is very hard. क्या हो जाता है, बहुत सॉलिडिफाई हो जाता है और इसके कारण जो तुम्हारी फ्रैक्चर है, जो बोन डैमेज हुई है या जिसमें क्रैक है वो सही हो जाती है. फाइन. आई थिंक you are all able to do the question answers now and have understood the topics that we have discussed till now. Fine. So start revising the topics and do your question answers. Fine. Enough for today. The chapter is also completed. Have a nice day and bye.